Good morning, everyone. Good morning, Morning, sir. sir. Good morning, sir. Can you all hear me? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Can you see me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So what did we do in the last class? We were solving constraint problems. Okay. So till now we were doing problems related to massless string, right? Yes, sir. Okay. So in the massless string, what happens? Tension at all points is same, Yes. right? So now today we are going to start what will happen if the string has some mass. Okay. Today we are going to start what would happen if the string has some mass. Okay. पिछले पेज में होमवर्क देते थे What? क्वेश्चन चल रहा था क्लास में क्या किया था लास्ट क्लास में? होमवर्क दिया था लास्ट में हाँ, तो होमवर्क आप करते रहिए, फिर एक साथ जब हम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे तो सारे होमवर्क्स भी डिस्कस कर लेंगे क्लास वाले, ठीक है? गुड मॉर्निंग प्रॉब्लम सर। दिया था आपने जी Okay. So today we are going to learn about massive strings. Massive strings. Okay. अगर स्ट्रिंग का कुछ मास दिया हुआ है तो फिर स्ट्रिंग का कुछ मास दिया हुआ है तो उसमें टेंशन जो है वो किस तरीके से वेरी करेगा, ठीक है? सो नाउ इन द मासलेस स्ट्रिंग क्या कॉन्सेप्ट था? मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन एट each point is same. Okay. Now in the massive string, what would happen? Okay. So to do that, let's consider an example. Okay. Suppose this is a rope. Okay. The rope has length L and mass M. And suppose this rope mass is 1 kg. Okay. And length is L. Suppose this rope is moved in the right direction with force is equal to 20 Newton. Okay. 20 Newton. So यहाँ पर जो है force 20 Newton लग रहा है. Okay. Now if we let's say go back to this and rope in x distance, ठीक है? So इस point पे जो कि x distance पे है, we need to find tension. So what is the tension? Tension at point x. ठीक है? तो x कहां से कहां तक वेरी करेगा? 0 से लेकर L तक. क्लियर बात सबको ये? यस सर ओके. सो यहां पर हमें टेंशन फोर्स इस पॉइंट पे टेंशन फोर्स निकालना है. Okay. Okay. So first I'll give you a method. Okay. After that you will try by your own. Okay. So now let me tell you that this is a string of mass M and length L. Okay. Now if you consider the whole string, okay, on the whole string, what is the force, net force? It is just 20 Newton on the right side. Is it fine?
Yes. Okay. So what is F is equal to ma. Okay. If F is 20 Newton in the right side, the acceleration is the right side with a. Okay. So F is nothing but 20 Newton is equal to mass is 1 kg. It is given into a. Okay. So a will become as 20 meters per second square. Okay. So the acceleration of the rope is 20 meters per second square. Now let's look at what is the tension at point X. Okay. So we need to find the tension at point X. So consider this element. Consider this element. This X wala element. Okay. Just this element. Okay. अगर इस एलिमेंट की बात करें तो इस एलिमेंट पर राइट साइड में कितना फोर्स लग रहा है? 20 Newton. 20 न्यूटन. ठीक है. इस एलिमेंट में लेफ्ट साइड में सपोज टेंशन T लग रहा है, क्योंकि हमें यही तो टेंशन निकालना है ना. Yes, sir. ठीक है. अच्छा, ये एलिमेंट जो है वो रोप के साथ ही कनेक्टेड है, पूरा का पूरा रोप का एक एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट का एक्सेलरेशन भी a होगा. Yes. और a हमने निकाल दिया है. ठीक है. तो इस एलिमेंट पे अगर हम लगाएं F इज इक्वल टू m इंटू ए. ओके. अब बताइए मुझे, अगर टोटल स्ट्रिंग का मास m है तो मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा? m बाय l. क्लियर? Yes. और इसकी लेंथ है x, तो मास पर यूनिट लेंथ तो m बाय l है, और इसकी लेंथ है x, तो इसका मास कितना हो जाएगा? mx बाय l. ठीक बात? Sir. क्लियर? ओके. दिस मास इसका एलिमेंट है mx बाय l, और एक्सेलरेशन तो वही होगा सेम. फोर्स होगा 20 माइनस t. ओके. तो यहां से आ जाएगा 20 माइनस t इज इक्वल टू मास इज नथिंग बट 1 kg x by l into acceleration we have found it is 20 meters per second square. So from here what we'll get? T is equal to 20 into 1 minus x divided by l. Okay. So this is the tension force in the string. So now you recognize how did we solve the problem? Sir. Okay. Sir. Yeah. सर ये मास वेरी कर रहा है ना यहाँ पे. What? मास वेरी कर रहा है ना यहाँ पे. No, no, mass is uniform throughout the string. Mass vary नहीं कर रहा है. इसीलिए तो हमें लिखवा है m by l. Yes, sir. Okay. सर और ये जो फोर्स है सर वो हर पॉइंट पर सेम लग रहा है क्या? 20 न्यूटन का. 20 न्यूटन सिर्फ इस वाले पॉइंट पर लग रहा है, इस वाले सिरे पर जो राइट मोस्ट कॉर्नर है ना स्ट्रिंग का, वहां पर 20 न्यूटन लग रहा है. बाकी फिर इधर टेंशन लगेगा हर पॉइंट पे अलग अलग. ओके. लिख लिया सबने ये? यस सर ओके. अब आप लोग ट्राई कीजिए एक क्वेश्चन. ठीक है ना? आप लोग ट्राई कीजिए. हेलो सर. जस्ट 1 मिनट. सर नोट कर रहे थे. क्या हुआ? सर नोट कर रहे थे क्लास में. नोट में दे दूंगा क्लास के बाद, तो उसमें से नोट कर लीजिएगा आप. ओके सर. So in the last question the string was horizontal. ठीक है. अगर horizontal की बजाय मान लो string vertical है, तो vertical string है तो उस पे अब gravity भी काम करेगा. Yes, sir. है ना? और सपोज अब इसके ऊपर सपोज सेम है, मास m है, लेंथ l है, और ये 1 kg दिया हुआ है, और इसको 20 न्यूटन से जो है ऊपर पुल किया जा रहा है. ठीक है. तो एक्सेलरेशन ऊपर होगा. ठीक है. और सपोज हमें इस पॉइंट पे जो कि यहां से x डिस्टेंस पे है वहां पर टेंशन निकालना है. ठीक है. सो इसका पार्ट ए तो है कैलकुलेट एक्सेलरेशन ए. ओके.
और दूसरा पार्ट है कैलकुलेट टेंशन एट अ डिस्टेंस x। ओके, सो ये ट्राई कीजिए आप लोग जल्दी से। जिन लोगों ने नहीं लिखा है प्रीवियस वाला वो ये देख लीजिए। सर हाँ, सर टेंशन की डायरेक्शन इस तरफ क्यों है सर? टेंशन तो पुलिंग इफेक्ट है ना। क्या हुआ इस केस में? यस सर, टेंशन की डायरेक्शन ऑपोजिट क्यों है? टेंशन तो पुलिंग इफेक्ट है। हाँ, तो टेंशन इस वाले एलिमेंट को जो है पिछले वाला हिस्सा पुली तो करेगा रस्सी का। सर क्वेश्चन रस्सी में कहाँ पे है? कौन है? समझ के बात? सर यहाँ पे तो रस्सी नहीं है, क्या हुआ? स्ट्रिंग तो नहीं। सर यहाँ पे तो स्ट्रिंग नहीं है, तो जुड़ा है ना, वो तो एक पार्ट है रोड की। अरे तो एक तरह से तो जो पीछे वाला पार्ट है वो इसको पीछे ही खींचेगा ना, पुलिंग इफेक्ट है तो जिधर से कनेक्टेड है उधर तो लगेगा। इस स्ट्रिंग से रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग जो मैसिव है वो पीछे कनेक्टेड है ना, तो इसको वो पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, पीछे वाला पार्ट। यस सर, यस सर। ओके, Yes. स्ट्रिंग जिधर कनेक्टेड है उधर लगेगा पुलिंग इफेक्ट। अब इसमें निकालिए आप। पहले वाले केस में जो है हॉरिजॉन्टल था, इस वाले केस में वर्टिकल है। सर इस केस मास में आप है यहाँ पे। मास 1 kg है, सेम मास 1 kg। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा पहले तो क्या हुआ? सर पिछला क्वेश्चन में मास कुछ अलग होता तब भी सेम ही आंसर आता है। दूसरे वाले केस में सर पिछला वाला क्वेश्चन में अगर मास कुछ अलग भी होता तो सेम ही आंसर आता है। नहीं, आप देख लीजिए उसमें m को पुट करके देख लीजिए, फिर जनरल केस के निकाल के देख लीजिए। इस वाले क्वेश्चन को सब ट्राई कीजिए आप। सर यहाँ पे ग्रेविटी भी होगा ना? हाँ बिल्कुल, मैंने बोला ना वर्टिकल जरा तो ग्रेविटी पे लगेगा नीचे। वर्टिकल इसीलिए तो बोला मैंने। सर क्या हुआ? लेंथ कितना है? लेंथ क्या? लेंथ कितना है पूछ रहे हैं? अरे पिछले वाले क्वेश्चन में लेंथ दिया था क्या मैंने? क्या No, क्वेश्चन sir. पूछ रहे हो यार तुम? पिछले वाले क्वेश्चन में सिर्फ एल दिया था ना, तो एल के टर्म्स में निकाल लो x/l। सेम क्वेश्चन है, बस उसका वर्टिकल है। जो इन्फॉर्मेशन दी है उसी बेसिस पे करना है आपको। क्या होगा एक्सेलरेशन बताइए? सर 10 आ रहा है आपको। एक्सेलरेशन के लिए सबसे पहले पूरी की पूरी स्ट्रिंग को कंसीडर कर लेंगे एक बार। पूरी की पूरी स्ट्रिंग एंड लेंथ एल है सर और मास ब्राइटनेस m। ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग के ऊपर, पूरी की पूरी स्ट्रिंग के ऊपर एक तो 20 न्यूटन तो ऊपर लग रहा है, ठीक है, बट साथ साथ में ग्रेविटी भी लगेगा। सर ग्रेविटी कितना लगेगा इसके ऊपर? 10 m minus इंटू जी, और M m कितना है? 1 kg। yes, तो 20 सॉरी इट इज विल बी m इंटू जी, और m 1 है तो इट इज 10 न्यूटन। ओके, तो 20 10 तो ऊपर a से जाएगा सपोज, तो वापस से लगा दो इक्वेशन f इज इक्वल टू ma। ओके,
So m is 1 kg into a, or what is f? F is 20 minus 10. The acceleration is 10 meters per second square. Okay. So this is the acceleration. Okay. Now we need to find the tension at a distance x. So अब ये x वाला element ले लेंगे. Okay. Now let us consider this element, which length is x. Okay. इस एलिमेंट के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस होंगे? सबसे पहली बात तो 20 न्यूटन तो ऊपर लग रहा है. ओके. इसके ऊपर इसका खुद का ग्रेविटी भी लगेगा. Yes, sir. ग्रेविटी लगेगा. सपोज इसका मास m प्राइम है, तो m प्राइम g तो ग्रेविटी लगेगा. ओके. साथ में टेंशन फोर्स इसमें नीचे लगेगा, ऊपर लगेगा? नीचे सर. नीचे लगेगा, तो T भी लगेगा साथ में. ओके. और ये भी A से ऊपर जा रहा है, तो यहां पर भी F बराबर m में लगा दो. ठीक है. तो मास तो है m प्राइम, A से जा रहा है ऊपर. फोर्स क्या क्या है? 20 ऊपर है, माइनस T नीचे है, माइनस m प्राइम g नीचे. ठीक है. तो T आ जाएगा यहां से 20 माइनस m प्राइम g माइनस m प्राइम a. तो T आ जाएगा यहां से 20 माइनस m प्राइम कितना है? m तो x into m by l. m तो पूरी स्ट्रिंग का है, पर यूनिट लेंथ का l हो जाएगा, और इसकी लेंथ है x इंटू जी, माइनस m प्राइम इज m बाय l, x इंटू a इज, a हमने निकाला था कितना? 10. ओके. तो मास जो है 1 kg है, तो 20 माइनस m इज इक्वल टू 1 रख देंगे, तो 10x बाय l माइनस 10x बाय. ठीक है. तो T आ जाएगा 21 माइनस x बाय l. ओके. तो 21 माइनस x बाय l. ठीक है. क्लियर सबको ये? Yes. Yes, sir. ओके. टेंशन नीचे क्यों लगाया सर आपने? ओके. सर क्या हुआ? सर टेंशन नीचे क्यों लगाया आपने उस एलिमेंटल पार्ट पे, मतलब एक्स डिस्टेंस पे? अरे मैंने बताया ना कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ऊपर वाले पार्ट को नीचे ही तो खींचेगा ना. इसमें टेंशन में अभी तक हाँ। आपको कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? मुझे समझ में नहीं आ नहीं रहा. नहीं सर, वो अभी पहला स्लाइड मैंने देखा नहीं था, मतलब थोड़ा लेट हो गया ज्वाइन करने में. नहीं, बट पहला स्लाइड, बट आप देखो ना कि ऊपर वाला हाँ। एलिमेंट लिया मैंने, तो ऊपर वाले एलिमेंट पे नीचे वाला एलिमेंट नीचे कनेक्टेड है, तो जो नीचे कनेक्टेड है तो नीचे लगेगा. हाँ सर ठीक है. ओके. अगला सर, क्वेश्चन. सर ये जो Screenshot ले टेंशन लेंगे. है, हाँ सर ये जो टेंशन है, मैं उस पॉइंट पे निकाल रहे हैं ना, तभी तो वो टेंशन नीचे की तरफ लग रहा है. हाँ बिल्कुल सही बात है. ओके सर. पूरे स्ट्रिंग में कैसे निकालेंगे सर टेंशन इंटीग्रेट करके? पूरे स्ट्रिंग पर टेंशन कितना होगा? पूरे स्ट्रिंग पे टेंशन तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा ना. एक्स डिपेंडेंट आ रहा टेंशन. ऐसा क्यों होगा सर? मास तो यूनिफॉर्म है हर जगह. तो वही तो हमने देखा ना कि अगर मैसिव स्ट्रिंग है तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा. यहाँ पे एक्स बाय एल आएगा. एक्स पे डिपेंड भी तो कर रहा है. एक्स पर डिपेंड तभी तो कर रहा है ना वो. ओ सर, अब मास अगर वेरी करेगा तो फिर? मास वेरी करेगा तो फिर आपको देखना पड़ेगा, एम प्राइम को लिखना पड़ेगा मास के टर्म्स में. सर करवा दीजिए. Okay. सर आप कीजिए ट्राई असाइनमेंट 2.1 का हेलो क्वेश्चन सर. नंबर 19. जस्ट 1 मिनट. असाइनमेंट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 19 ट्राई कीजिए सब. हाँ क्या पूछ रहे थे आप? हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि जो वेट हमने पहले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया, तो हाँ. वहाँ सेंटर ऑफ मास से क्यों नहीं लिया वेट? कहाँ पर? ये जो पहले एनजी हमने कैलकुलेट किया. हाँ तो ये 10 न्यूटन लिया ना मैंने. हाँ, तो 10 वो क्या है? m इंटू जी है ना. m इज 1. क्वेश्चन नंबर रिपीट कर दीजिएगा प्लीज. क्वेश्चन नंबर 2.1 का 19.
हमने यही तो लिया है ना mg 10 न्यूटन लिया तो है। क्या डाउट क्या है आपका? डाउट ये था कि सर वो मैंने जो आपने जो वेट लिया वो तो पूरे mg ले लिया, तो मैं कह रहा था कि वो सेंटर ऑफ मास से नहीं लेना चाहिए था। तो mg मैंने यही तो लिया है ना, सेंटर ऑफ मास पे तो लिया है ना 10 न्यूटन। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है नहीं ठीक है। आपका आपको आपको कहाँ लगा mg मैंने कहाँ लिया है? मैं सोचा कि वो लेंथ डिपेंडेंट होगा। नहीं, पहले केस में हम पूरी की पूरी स्ट्रिंग कंसिडर कर रहे हैं ना। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर। ओके, असाइनमेंट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 19 ट्राई कीजिए सब लोग। सर क्लास के बाद थोड़ा रुक जाएंगे, मतलब वो ड्रैग फोर्स का एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल डाउट था, मैंने आपसे टेलीग्राम में पूछा लेकिन आप मैसेज नहीं दिखे सर। क्या हुआ? क्लास के बाद वो ड्रैग फोर्स का एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल डाउट है, आप थोड़ा रुक जाएंगे? हाँ हाँ, मैं ले लूंगा आपसे, ठीक है। ओके, ब्राइटनेस ज्यादा आ रही है क्या? ठीक है सर। सर बहुत ज्यादा। हाँ सर। यार इसका कुछ हाँ समझ सर, नहीं आ रहा है। ज्यादा है सर, मतलब चमक रहे हो आप बिल्कुल। थोड़ा सिस्टम हाँ पता दर्द नहीं होने चल लगता रहा है। है। सर लाइट जल रही है क्या बोर्ड के पास ऊपर? नहीं नहीं, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द लाइट, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ द कैमरा आई थिंक। सर आंख दर्द करने लगता है सर। सर वही कॉन्ट्रास्ट का इशू हो रहा है सर, जैसे क्लास ज्यादा हो रहा है थोड़ा, मतलब आप इसके पहले सही था सर, ये सही है। ये ठीक है, हाँ सर ठीक है। बट इसमें फिर थोड़ा सर, डार्क लग रहा है। अब पूरा अंधेरा हो गया सर। पूरा ही डार्क हो गया सर। ज्यादा डार्क हो गया। ठीक है, अब ठीक है सर। ठीक है। तो असाइनमेंट 2.1 का 19 ट्राई कीजिए आप सब। कमेंट बॉक्स में लिखिए आंसर आपका जिसका आ गया। सर एक बार फर्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए ना, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। मैं आपको भेज दूंगा फर्स्ट स्लाइड। ओके सर, थैंक यू। सी आ रहा है? अमृतेश, दिग्विजय, अंकित, सुमन, शिवम, अभिनव। ओके, ओके, लेट अस सी 9 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो a block of mass m is pulled along a horizontal frictionless surface by a rope of mass m। ठीक है, तो ये मास m है, ब्लॉक कैपिटल M। ठीक है, इससे जो है ये रोप कनेक्टेड है। ठीक है, और इस रोप को जो है खींचा जा रहा है, ये रोप का मास जो है m है, और इस रोप को खींचा जा रहा है फोर्स P से। तो हमें निकालना है कि व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन द ब्लॉक। ठीक है, तो फोर्स एक्सर्टेड, तो यहाँ पर ब्लॉक के ऊपर ये स्ट्रिंग टेंशन लगाएगा, तो हमें निकालना है इस पॉइंट पे टेंशन क्या है। क्लियर बात? क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? सर ओके, सो नाउ कंसीडर। सर आपकी ब्राइटनेस बार बार चेंज हो रही है। यस सर। कंसीडर ब्लॉक M। ब्राइटनेस का यार पता नहीं क्या इशू है, आई विल टेल द एडमिन। ठीक है, थोड़ा कम कर दीजिए ना ब्राइटनेस सर। वो अपने आप कम ज्यादा हो रहा है, आई डोंट नो इट इज अ कैमरा प्रॉब्लम और व्हाट प्रॉब्लम, क्योंकि लाइटिंग तो मेरी सेम है ऑलवेज। हाँ सर, इससे दिक्कत होता है सर, आंख दर्द करने लगता है, फिर पढ़ाई भी नहीं, क्लास नहीं पूरा हो पाएगी। क्या हुआ? सर आंख दर्द करने लगता है सर, मोबाइल से पढ़ाई हो करते हैं हम ना। अरे मैं क्या करूं, मैं बोलूंगा, मैंने कल भी बोला था
कॉन्ट्रास्ट का, उससे पर अभी तक कुछ हुआ नहीं। मैं बोलता हूँ आज जाके। कल ब्राइटनेस की प्रॉब्लम नहीं आ रही था ना, कल कॉन्ट्रास्ट ऑन ऑफ हो रहा था ना। नहीं सर ठीक। यस सर। हाँ आज कर लीजिए, फिर कल से फिक्स कर देंगे इसे। ओके, तो ब्लॉक एम को अगर कंसिडर किया जाए तो सबसे पहले बात तो इधर मान लो फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेशन ब्लॉक का भी ए इधर चलेगा और रोप का भी ए इधर चलेगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन तो ए होगा राइट साइड में। नाउ लेट अस लुक एट ब्लॉक एम। तो एम के ऊपर क्या क्या फोर्सेस रहेंगे? एम के ऊपर केवल स्ट्रिंग फोर्स लगाएगा, टेंशन फोर्स टी। क्लियर बात? तो F इज इक्वल टू एम ए लिखेंगे। ठीक है, F इज इक्वल टू एम ए लिखेंगे। तो F क्या है? T, M is capital M and it is, so this is equation number 1. Okay, अब consider रोप। ठीक है, तो रोप को अगर कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, दिस इज द रोप। ठीक है, रोप का मास दिया हुआ है m, रोप इधर एक्सेलरेशन a से जा रही है, रोप के राइट साइड में लग रहा है p। ठीक है, और रोप के ऊपर टेंशन फोर्स राइट में लगेगा कि लेफ्ट में लगेगा? सर राइट में, लेफ्ट में। लेफ्ट में लगेगा। है ना, एम ब्लॉक उसके ऊपर इधर लगाएगा जस्ट यहाँ सिरे पे। ठीक है, अगर रोप एम के ऊपर इधर लगा रही है तो ब्लॉक रोप के ऊपर लेफ्ट में लगाएगा ना। यस सर। तो इसके ऊपर लगा दीजिए वापस F बराबर m है, न्यूटन लॉ अपना। तो मास तो m है, एक्सेलरेशन a है, नेट फोर्स क्या है? P माइनस T। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हमें निकालना है कि व्हाट इज द टेंशन। ठीक है, तो एक काम कीजिए, एक्सीलरेशन को जो है कर देते हैं सर। यहां से पुट कर दीजिए आप T बाय m। तो ये हो जाएगा P माइनस T इज इक्वल टू m इंटू T बाय m। तो P इज इक्वल टू T, in the right side it will be m plus m, okay, divided by capital M. Okay, so T will be nothing but m, capital M into P divided by capital M plus small m. Okay, so what will be the answer? Answer will be C. लिख लीजिए इसे। जिन्होंने लिख लिया है वो क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं मैं। सर यस सर, अगर सर इस स्ट्रिंग में नहीं होता तो सर हम क्या नहीं होता? स्ट्रिंग में क्या नहीं होता? मासलेस होता स्ट्रिंग। अगर हाँ, मासलेस होता तो फिर क्या करते हैं? तो सर बताइए। स्ट्रिंग के ऊपर फोर्स 0 होता ना, तो सर हाँ, तो T इज इक्वल टू मतलब P हो जाता फिर। string T इज इक्वल टू T हो जाता फिर। मासलेस होता है यहाँ से तो T इज इक्वल टू P हो जाता, सिर्फ M 0 हो जाता ना। यस सर। ओके, सर ये टेंशन कैपिटल एम की वजह से होगा या स्मॉल एम की वजह से? क्या हुआ? सर टेंशन है ना ब्लॉक एम में। हाँ, तो टेंशन जो है वो स्ट्रिंग में होगा, तो स्ट्रिंग का मास स्मॉल m है ना, तो टेंशन जो है इस रोप की वजह से है। बॉडी के अपोजिट होता है ना हमेशा टेंशन, तो आपने डायरेक्शन इधर लेफ्ट साइड को क्यों लिया सर? टेंशन जो है वो पुलिंग इफेक्ट होता है ना, तो M ब्लॉक के ऊपर टेंशन इधर लग रहा है। अब M ब्लॉक जो है वो रोप को पीछे खींचेगा ना, तो रोप के ऊपर तो पीछे लगेगा। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यस सर। और यहाँ पे सर जो टेंशन मतलब पुल कर रहा है एम ब्लॉक को, वही हाँ? ऐसा फोर्स की तरह एक्ट कर रही होगी एम ब्लॉक के लिए ना। क्या हुआ? सर जो टेंशन पुल कर रहा है एम ब्लॉक को, हाँ कैपिटल एम ब्लॉक को, हाँ, वही ऐसा फोर्स की तरह एक्ट कर रही होगी ना उस ब्लॉक पे। नहीं, सिर्फ टेंशन ही लग रहा है ना इस ब्लॉक पे।
नहीं सर वही बोल रहा हूँ, जो ये टेंशन है वो ब्लॉक पे फोर्स की तरह एक्ट कर रही होगी ना उसको पुलिंग के लिए। हाँ तो टी लग रहा है ना फोर्स, तो बस टेंशन हाँ। लग रहा है और क्या है। केवल टी ही तो लग रहा है ब्लॉक के ऊपर। ओके, एक कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। तो हमने ये देखा है कि अगर मैसिव स्ट्रिंग है लेंथ एल की, है ना, सपोज मैसिव स्ट्रिंग है, ओके, और उसके एक्स डिस्टेंस पर टेंशन जो है वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा, ठीक है। तो दिस इज मैसिव स्ट्रिंग, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एवरेज स्ट्रिंग इन द टेंशन, ठीक है ना, अगर आपसे एवरेज पूछा जाए, सो एवरेज वैल्यू ऑफ टेंशन क्या होगा। तो एवरेज आपने पढ़ रखा है थर्मोडायनेमिक्स में, क्या होता है, इंटीग्रल टी एक्स इंटीग्रल टी डी एक्स डिवाइडेड बाय इंटीग्रल डी एक्स, ओके। और ये है 0 to L और ये है 0 to। तो आपसे अगर एवरेज टेंशन पूछा जाए तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। क्लियर बात सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। तो अब एक बात बताइए मुझे, क्वेश्चन नंबर ट्राई कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर आप असाइनमेंट 2 का, असाइनमेंट 2.1 का, असाइनमेंट 2.1 का क्वेश्चन नंबर आप 31 ट्राई कीजिए। A thin uniform chain of length L, वो वाला, and mass M is pulled by a constant force F in vertically upward direction. The average value of the tension in the string will be. तो वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, इसका मतलब कि ग्रेविटी भी लगेगा ना साथ में। तो सबसे पहले तो आप किसी पॉइंट पे टेंशन निकाल लीजिए, टी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ये मास m है, लेंथ l है, ठीक है, ये फोर्स F है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप किसी x पॉइंट पे उसका टेंशन निकाल लीजिए, और x पॉइंट पे अगर टेंशन निकल गया तो फिर उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रल टी डी एक्स बाय इंटीग्रल डी एक्स, जीरो से लेकर एल तक, तो आपका एवरेज टेंशन आ जाएगा। शिवम का आ रहा है F/2,
ओके टेंशन क्या आ रहा है शिवम आपका? सुमन का भी आ रहा है बेटा। सर एफ माइनस एम एक्स जी बाई एल माइनस एम एक्स ए बाई एल। अच्छा सर मेरा टेंशन f into 1 minus x पे आ रहा है जैसे पिछला क्वेश्चन। हाँ हाँ वही सेम आएगा ना, टेंशन तो वही रहेगा। यस f into 1 minus x पे एफ इंटू 1 माइनस एक्स बाय एल, ठीक है ओके। देखिए एवरीवन, इसमें क्या है कि ये एफ से ऊपर खींचा जा रहा है, ठीक है, और एम एल उसकी मास और लेंथ दिया हुआ है, तो हमें निकालना है व्हाट इज द एवरेज टेंशन। तो यही का यही प्रॉब्लम हमने एग्जैक्टली पहले किया था, एक किया था कि नहीं? और Yes. उसमें सिर्फ सेम प्रॉब्लम था, देखिए सेम प्रॉब्लम था जब एफ की जगह बस 20 न्यूटन था। क्लियर है सबको? Yes, sir. है ना, सिर्फ एफ की जगह 20 था, तो वहां पर टेंशन क्या आया था? 20 इंटू 1 माइनस एक्स बाय एल। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एफ इंटू 1 माइनस एक्स बाय एल। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। है ना, सेम टू सेम प्रॉब्लम हमने किया था। तो टी जो है हमारा आ जाएगा एफ इंटू 1 माइनस एक्स बाय एल। ओके, हमें निकालना है, दिस इज एट टी एट पर्टिकुलर एक्स पॉइंट, ठीक है, हमें निकालना है एवरेज ऑफ टी। तो व्हाट इज एवरेज ऑफ टी? नहीं नहीं, जनरल एम के लिए, जनरल एम के लिए भी यही क्वेश्चन, यही आंसर आएगा। जनरल एम के लिए भी यही आंसर आएगा, ठीक है। एवरेज टी कितना हो जाएगा? इंटीग्रल इंटीग्रल हो जाएगा टी dx बाय इंटीग्रल dx। तो टी dx करेंगे तो इंटीग्रल टी dx, तो ये 0 से l और ये 0 से l। तो एवरेज वैल्यू ऑफ टी हो जाएगा हमारा f इंटू 1 माइनस एक्स बाय एल डिवाइडेड बाय एल। सॉरी, इसका इंटीग्रल है dx 0 से l और ये है l, क्योंकि इंटीग्रल dx 0 से l है, ठीक है। तो यहां पर बताइए मुझे जल्दी से, पहला टर्म क्या होगा ऊपर? क्या होगा? f l by 2 होगा। FL/2। पहला टर्म होगा f इंटू एल होगा, सर क्योंकि 1 है तो 1 का तो l हो जाएगा। दूसरा टर्म क्या होगा? L²/2 L। एक्स स्क्वायर बाय 2, तो f l बाय 2 हो जाएगा। ये एक l पहले से नीचे है, ठीक है, और नीचे है l, नीचे है। तो एवरेज t आ जाएगा हमारा fl माइनस fl बाय 2 विच इज f बाय 2 और नीचे l है, ठीक है। तो एवरेज t जो आ जाएगा हमारा f बाय 2 और आंसर आएगा d, ठीक है। क्लियर बात सबको? Yes, sir. ओके, अब आप लोग होमवर्क में ट्राई कीजिएगा। होमवर्क में आप लोग ट्राई कीजिएगा। असाइनमेंट 2.1 का 9th 17th एंड 32nd और असाइनमेंट 2.4 का 20।
लिख लीजिए, फिर चलते हैं आगे अपन। मैसिव स्ट्रिंग हमने कर लिया है, मैसिव स्ट्रिंग के 3-4 सवाल कर लिए हैं। अब बाकी कुछ आप असाइनमेंट से कीजिएगा। तो जो ये एवरेज टी है ये इसका मैग्नीट्यूड है ना, तो डायरेक्शन का क्या होगा? डायरेक्शन तो जिस एलिमेंट पे देखेंगे उस पे अलग अलग लगेगा ना, मैंने बताया। यस। तो जैसे ऊपर वाले एलिमेंट पे देखेंगे तो ऊपर वाला एलिमेंट पे नीचे वाला नीचे लगाएगा, बट नीचे वाला एलिमेंट को कंसीडर करेंगे तो उसमें ऊपर लगेगा। तो जहां पर देख रहे हैं किस किस मास को देख रहे हैं, स्ट्रिंग के किस पार्ट को देख रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। ओके ओके, लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। ओके, फिर यहाँ पे आपने टेंशन को कैलकुलेट करने वक्त सिर्फ ऊपर वाला पार्ट को लेके किया था ना, अगर हम लोग सिर्फ नीचे वाला पार्ट लेके टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, तो भी आंसर सेम आएगा, आप करके देखिए। सर कैसे करेंगे? टी इक्वल्स टू एम ए कर देंगे डायरेक्ट? किसकी बात कर रहे हैं आप? नीचे वाला पार्ट मतलब इसकी? हाँ सर, उसको लेके उसको कंसीडर करके टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, तो इसके ऊपर आप लगेंगे टी माइनस इसका मास हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा इसका मास, नीचे वाले का मास क्या होगा, m/l इंटू l माइनस एक्स, हाँ है ना, और इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फिर वही वही आ जाएगा। हाँ, सेम आएगा आंसर। ओके सर यस, सर अगर कोई फोर्स अगर कांस्टेंट है तो सर उसके एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं? कोई फोर्स अगर कांस्टेंट फोर्स हो तो, जैसे कि इस प्रॉब्लम में था, तो जैसे बहुत जगह सर आ जाता है कांस्टेंट फोर्स के बारे में, तो उसको मतलब हम लोग उसके एक्सेलरेशन को मतलब कैसे नहीं, इंटरप्रेट? फोर्स कांस्टेंट है बट एक्सेलरेशन जो है वो, मास भी कांस्टेंट है, फोर्स भी कांस्टेंट है, तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन a है, कांस्टेंट है a। ठीक है, लेकिन सर इस केस में तो अलग अलग ना होगा, क्योंकि इस केस में अलग अलग पॉइंट्स का मास। एक्सेलरेशन तो सेम है, इस केस में टेंशन अलग अलग होगा, एक्सेलरेशन तो सेम है ब्रदर। अच्छा, यस। एक्सेलरेशन तो सेम है ना, टेंशन अलग अलग होगा सिर्फ। ऐसे में सर, हाँ जी, और जैसे जो पिछला क्लास में दिया हुआ था उसमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते थे सर, मैं उस डिस्प्लेसमेंट को ही फाइंड आउट करना चाहता हूँ, यदि एक्सेलरेशन दिया हुआ हो तो। सर किसकी वो इसकी बात कर कॉन्सेप्ट रहे हम हैं लोग आप? कैसे इसकी डील बात कर रहे हैं? नो सर, जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए हैं, मैं पिछले उसकी क्लास बात की कर बात रहा यहाँ पे हूँ। कहाँ से आ गई? तो वहां पे क्योंकि वो भी मतलब ट्राई कर। नहीं नहीं, पिछले क्लास का डाउट है तो वो हम क्लास के बाद डिस्कस कर लेते हैं। मेरे को समझ नहीं आता। ठीक है, वो मुझे डाउट नहीं है सर, वो है ना कोई कंसेप्ट है, ये वो नॉइज चीज आ रहा है यार मतलब काफी ज्यादा। मेरे तरफ से नॉइज नहीं है सर। इसमें आ जाता है कुछ और। ये किसी का माइक ऑन है, कृपया इसे बंद कर लीजिए माइक को। कविता का है सर। हाँ हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? उस जैसे हम लोग जो पिछले आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। तो उसमें मैं बोल रहा था कि जो पिछले क्लास में हम लोग था ना कि पुली था, उसमें एक डिस्प्लेसमेंट होता था और हाँ, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते थे। हाँ बिल्कुल। तो वो तो सर समझ में यस सर, वो तो समझ में आ गया था। हाँ, लेकिन मैं सर एक कंसेप्ट ऐसा चाहता हूँ कि उसमें है कि एक्सेलरेशन दिया हुआ हो या कोई और भी चीज, मतलब उसका क्वांटिटी दिया हुआ और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना हो, तो सर उस कॉन्सेप्ट को सर अगर 1-2 सवाल हो जाता तो सर हम लोग को उस कॉन्सेप्ट भी अच्छा मतलब नहीं, वो मैं आपका जो डाउट है वो क्लास के बाद हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आपको जो डाउट है स्पेसिफिक। ओके सर। ओके, अभी क्लास के बाद। ओके, लिख लिया सबने ये? ओके, ठीक है। तो टेंशन में हमने देखा, अभी सबसे पहले हमने टेंशन फोर्स देखा क्या है, पुलिंग इफेक्ट है। ठीक है, टेंशन फोर्स हमने देखा मासलेस पुली के लिए। ओके, फिर टेंशन फोर्स मासलेस पुली के लिए देखा और मासलेस स्ट्रिंग के लिए देखा। फिर पुली फिक्स्ड है उसके लिए देखा। फिर पुली भी चल रही है आगे, उसके लिए देखा। फिर इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट से हमने क्या निकाले, एक्सेलरेशंस के बीच में रिलेशंस निकाले डिफरेंट। ठीक है, और अब जो है हमने आज किया है वो मैसिव स्ट्रिंग के लिए किया है। ठीक है, अगर मैसिव पुली होगा तो भी हमने प्रीवियस कर लिया है। ठीक है, तो हर तरह के हमने जो है प्रॉब्लम्स जो है इसमें कवर कर लिए हैं, और बाकी मैंने आपको असाइनमेंट में दे रखे हैं। ठीक है ना, तो हमने जो किए हैं उसी पे बेसिस पे जो आपके असाइनमेंट के प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो असाइनमेंट करेंगे तो उससे आपको प्रैक्टिस होगी। तो असाइनमेंट जैसे जैसे मैं होमवर्क आपको साथ में देते जा रहा हूँ वैसे वैसे आपको कंप्लीट करना है। ठीक है ना, आपको ऐसा नहीं करना है कि
असाइनमेंट 2 पूरा न्यूटन्स लॉ खत्म होगा तो एक साथ करेंगे। क्लियर बात, क्योंकि अभी आपके फ्रेश कॉन्सेप्ट्स हैं, तो अभी आपके जो है असाइनमेंट्स आसानी से हो जाएंगे। क्लियर बात सबको ये यस यस है ना? तो असाइनमेंट साथ साथ में करते रहिए और हम एक एक फोर्स करके करते रहेंगे आगे। तो अगला फोर्स हम देखेंगे नॉर्मल फोर्स। ओके, सो नॉर्मल फोर्स के बारे में थोड़ा लिख लीजिए आप पहले, उसके बाद में हम क्वेश्चन से समझते हैं। when a body of mass touches any surface, then the surface will exert the normal force N ठीक है? तो मान लो एक ब्लॉक ऑफ बॉडी है ना, ब्लॉक ऑफ मास है, बॉडी ऑफ मास है, उसको हमने किसी सरफेस पे रखा है, ठीक है? तो सरफेस और बॉडी जो है वो कांटेक्ट में है, तो सरफेस जो है बॉडी के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाएगा, ठीक है ना? अब बताइए मुझे व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स, बताइए मुझे। परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है? सो द डायरेक्शन of normal force is perpendicular to the plane of surface. Okay, so now let's see an example. Suppose there is a surface here, okay, and there is a block, ठीक है, if mass m, ठीक है? तो बताइए मुझे सबसे पहली बात तो इस ब्लॉक के ऊपर कौन कौन सा फोर्सेस लगेंगे? एक फोर्स तो लगेगा ग्रेविटी का फोर्स लगेगा जो कि हो जाएगा नीचे। इस ब्लॉक के ऊपर सरफेस पे टच है तो सरफेस नॉर्मल भी लगाएगा इसके ऊपर, नॉर्मल तो नॉर्मल किधर लगेगा इसका? की तरफ, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है? अच्छा, अब ये बॉडी जो है इस डायरेक्शन में, सपोज दिस इज वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में बॉडी का कोई मोशन है क्या? नो सर, नहीं है। मतलब एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या है हमारा? 0। अगर एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में 0 है मतलब एफ इन वाई डायरेक्शन क्या है? 0 है। तो एफ इन वाई डायरेक्शन क्या है? नॉर्मल तो ऊपर है और एम जी नीचे है, इज इक्वल टू 0। ओके, तो नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा यहां से? एम जी। ओके, लिख लीजिए इसे, फिर आगे चलते हैं। सर नॉर्मल बॉडी का सेंटर ऑफ मास पर ही लगेगा कि नहीं नहीं, वो डिपेंडेंट नहीं है, नॉर्मल कहीं भी लग सकता है। ओके, कविता बोल रहे सॉरी सर गलती से हुआ, कोई बात नहीं कविता, बस ध्यान रखिए कि हो गया सर। लिख लिया सबने? Yes, sir. ओके, सर अभी तक हमने जितने भी न्यूमेरिकल्स किए हैं
हाँ उसमें जो हमने ब्लॉक माने हैं तो सर वो उसमें तो नॉर्मल लग रहा होगा ना? हाँ, उस पर नॉर्मल लग रहा होगा, बट हमने आप ये देखेंगे कि मैंने कभी भी जिधर नॉर्मल लग रहा है उधर का डायरेक्शन कंसीडर ही नहीं किया है। हाँ सर, उसको हमने कंसीडर ही नहीं किया था। हाँ हाँ ठीक है, बाकी तो नॉर्मल सर तो लगेगा ही जो लगेगा। नॉर्मल लग रहा है हम इसको ये नहीं कह सकते वो ब्लॉक के परपेंडिकुलर लग रहा है? हाँ, ब्लॉक मतलब जो देखिए सरफेस और ब्लॉक के बीच का एक सरफेस होगा, यस सर। है ना, उस सरफेस के नॉर्मल पे लग रहा है, जहां पे टच हो रहा है ना। यस सर। लिख लिया सबने ये? तो नॉर्मल और एमजी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होंगे ना? क्या हुआ सर, ये एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे? हाँ हाँ, इस केस में एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे। सर एक्शन रिएक्शन तो दोनों का सर, लेकिन normal नेचर अलग है ना? एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे इन द सेंस कि उसकी वैल्यू इक्वल होगी, बट मतलब कि मास m भी तो जो है नॉर्मल लगाएगा सरफेस के ऊपर, वो एक्शन रिएक्शन पेयर होगा, mg नहीं होगा। सर नॉर्मल फोर्स का ये एक पर्टिकुलर केस है ना, मतलब जिसमें दोनों इक्वल हो गए, नॉर्मल हाँ हाँ फोर्स और हाँ, तो करते हैं ना हम आगे। Yes. इस क्वेश्चन में बताइए मुझे नॉर्मल क्या होगा। जस्ट 1 मिनट। This is theta and this is block of mass m. ओके तो अब बताइए मुझे इस ब्लॉक के ऊपर कौन कौन सा फोर्सेस लगेंगे। एक तो लगेगा mg किधर लगेगा? नीचे की तरफ। mg तो नीचे लगेगा। नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो सरफेस इधर है तो नॉर्मल इधर लग जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट n, निकालिए आप n, क्या होगा इस केस में? नॉर्मल फोर्स क्या लगेगा बताइए? एमजी का कॉस कंपोनेंट, mg sin थीटा। एक आ रहा है साइन और एक आ रहा है कॉस। mg cos थीटा। देखिए तो सपोज यहाँ पर दो डायरेक्शन है, तो एक डायरेक्शन तो मैं इधर ले लेता हूँ y, है ना, और इधर ले लेता हूँ मान लो मैं x। ठीक है, तो इस ब्लॉक का अगर हम फोर्सेस देखें, ठीक है, तो इससे cos थीटा हो जाता है। ठीक है, इस ब्लॉक के ऊपर फोर्सेस देखें तो नॉर्मल तो इधर लग रहा है y डायरेक्शन में, ठीक है, mg जो है वो इधर लग रहा है। अच्छा, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो mg का कंपोनेंट पैरेलल टू सरफेस क्या होगा? mg cos ऑफ 90 माइनस थीटा विच इज mg sin थीटा। यस सर। और mg का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू सरफेस क्या होगा? इधर होगा और होगा mg cos थीटा। ठीक है, तो अगर हम y डायरेक्शन की बात करें तो इन y डायरेक्शन f net इज 0, y डायरेक्शन ये, तो f net इज 0, तो f net में ऊपर तो लग रहा है n और नीचे लग रहा है mg cos थीटा। दिस इज 0, तो यहां पर n हो जाएगा mg cos थीटा। अब बताइए यहां पर अगर थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो mg आना चाहिए आंसर। यस सर। थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो मतलब ये वाला केस हो जाएगा कि प्लेन का एंगल 0 है, तो mg आना चाहिए आंसर, तो mg आ रहा है ना। यस सर। ठीक है, अगर आप कुछ लोग बोल रहे हैं कि mg sin थीटा, तो वहां पे थीटा इज इक्वल टू 0 पे नॉर्मल 0 हो जाएगा। तो आपको आंसर का चेक करने का तरीका ये है कि आप थीटा को जो है लिमिटिंग केस में एक बार पुट करके देख लीजिए। क्लियर बात? अच्छा, अब f y डायरेक्शन में तो सिस्टम है जो उस पर नेट 0 है, बट x डायरेक्शन में तो स्लाइड कर सकता है ना ब्लॉक। यस सर। तो x डायरेक्शन में इधर लग रहा है फोर्स, तो इधर एक्सेलरेशन a से लग रहा है, तो एक्सेलरेशन निकालिए कितना होगा? g sin थीटा। mg sin थीटा। तो एक्सेलरेशन क्या होगा?
तो इन एक्स डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में क्या है, F बराबर ma लिखेंगे। फोर्स तो केवल mg sin थीटा लग रहा है इधर, इज इक्वल टू ma। तो ए आ जाएगा g sin। वीडियो पॉज हो गई क्या? ओके ओके, लिख लिया सब? नहीं है? यस सर। ओके, अब बताइए मुझे अगला क्वेश्चन, उसमें आप नॉर्मल निकालिए क्या होगा। सपोज देर इज अ लिफ्ट, ठीक है, तो लिफ्ट है ये, सर ओके हाँ हेलो सर। सर प्रीवियस क्वेश्चन में सर ड्रैग फोर्स नहीं लगेगा? क्या लगेगा? ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स कहां से आ गई बात? ड्रैग सर की जब मैंने सर कहा नीचे बोला आपको? फ्लूइड में। ड्रैग फोर्स किसके ऊपर? ब्लॉक के ऊपर ड्रैग फोर्स कहाँ लगेगा? मैंने कुछ बोला है कि एयर ड्रैग लगेगा या फ्रिक्शन लगेगा? कुछ कुछ सर लेकिन देखिए, सर अगर आपको रियल कुछ नहीं दिया हुआ ना, तो आपको सिंपलेस्ट वाला मान के चलना है, ठीक है ना। लेकिन सर अगर रियल होता तो लगेगा। ड्रैग और फ्रिक्शन कुछ होता तो मैं आपको स्पेसिफिकली मेंशन करता क्वेश्चन में। ओके, सपोज दिस इज लिफ्ट और उसके ऊपर है मास, सपोज इट इज 1 kg का है मास, ठीक है। और लिफ्ट जो है मान लो कि नीचे आ रही है g/2 से, लिफ्ट आ रही है नीचे g/2 एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो ये जो है कैलकुलेट नॉर्मल फोर्स ऑन ब्लॉक। निकालिए इससे आंसर लिखिए आप। जी को 10 लेना है। सचिन, शिवम 5, ओके। परेशा g-g/2, जी को आप 10 ले लीजिए परेशा। सुजाता, सुमन, ठीक है, 5 न्यूटन आ रहा है सबका। ओके ओके, तो 1 kg ब्लॉक को देख लेते हैं एक बार क्या है, ठीक है। तो ये 1 kg ब्लॉक है। तो सबसे पहली बात तो ये लिफ्ट के साथ अटैच्ड है, ठीक है। तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? तो पहली बात तो इसके ऊपर ग्रेविटी लगेगा, कितना लगेगा? mg। तो mg लगेगा कितना? m तो है 1 और g है 10, तो 10 न्यूटन तो नीचे लगेगा इसके, ठीक है। और लिफ्ट जो है इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स भी लगाएगी, यस नॉर्मल फोर्स भी लगेगा, ठीक है। और पूरा का पूरा सिस्टम g/2 से आ रहा है, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे g/2 है, ठीक है। तो इस ब्लॉक के ऊपर लगा दीजिए F = ma। F = ma लगाएंगे अगर हम, तो m इज 1, एक्सेलरेशन निकालना है, और फोर्स है 10 तो नीचे लग रहा है, -n, है ना। और एक्सेलरेशन जो दिया हुआ है g/2 दिया हुआ है, ठीक है। तो n = 10 - g/2, और g 10 है, तो दिस इज 5 न्यूटन। अब इस केस में बताइए मुझे क्या है? लिफ्ट जो है मास तो 1 kg का ही है,
बट लिफ्ट जो है G/2 से ऊपर जा रही है, तो नॉर्मल फोर्स क्या होगा बताइए? पंद्रह हो जाएगा। शाश्वत 15, शिवम 15, ठीक है। ओके 15, ठीक है। तो देखिए ब्लॉक के ऊपर फोर्सेस तो वही के वही हैं, 1 kg, ठीक है। नीचे है mg मतलब 10 न्यूटन और ऊपर है नॉर्मल। बट अब इसका एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ G/2, सो इट्स एक्सेलरेशन इज G/2 इन द अपवर्ड्स डायरेक्शन, ठीक है। तो वापस से लगाएंगे F इज इक्वल टू ma, तो मास इज 1, एक्सेलरेशन इज G/2, फोर्स क्या होगा? N माइनस 10, ठीक है। तो N विल बी 10 प्लस G is 10/2, 5, 15 न्यूटन। ओके लिख लिया सब नहीं है? यस सर। ओके ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स को हम सीख लिया। अब हम नॉर्मल फोर्स को अप्लाई करेंगे आगे के फोर्सेस में, ठीक है ना। ठीक है, तो इसके प्रॉब्लम्स हम दूसरे फोर्सेस के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स के बाद हम पढ़ते हैं एक इक्वेशन, फ्रिक्शन फोर्स। सर जस्ट एक डाउट था सर। हाँ जी बोलिए। नॉर्मल वाले में पूछ रहा था कि नॉर्मल, यस सर, नॉर्मल फोर्स ओनली सॉलिड सरफेस के लिए ही होगा या फिर लिक्विड सरफेस या और ही गैसेस सरफेस जो होंगे उसके? नहीं, नॉर्मल फोर्स जो है वो जैसे आपने वाटर रखा है किसके इसमें मैं एक ब्लॉक जो है सर वाटर सरफेस पे है, हाँ, तो उस कंडीशन में भी वाटर सरफेस ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेंगे? नॉर्मल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, बिल्कुल लगेगा। मींस सॉलिड सरफेस होना कोई मतलब नेसेसरी नहीं है? नहीं सॉलिड सरफेस नेसेसरी नहीं है, बट आपको जो है नॉर्मल किस लिए लग रहा है? क्योंकि नॉर्मल मतलब क्या है कि जो नीचे वाला सरफेस है उसके मॉलिक्यूल्स ऊपर वाले सरफेस को पुश कर रहे हैं। नॉर्मल का मतलब ये है ना अल्टीमेटली, तो ठीक है। ये भी तो मतलब ऐसा हम समझते हैं कि mg को बैलेंस करने के लिए नॉर्मल फोर्स लगता है। mg को बैलेंस करने के लिए लग रहा है, क्योंकि mg क्यों बैलेंस हो रहा है? क्योंकि नेट फोर्स 0 है, इसलिए mg के बराबर हो गया वो, ठीक है। ओके, तो फ्रिक्शन फोर्स की बात कर लेते हैं। इसके बारे में पहले थोड़ा लिख लेते हैं। ओके, सो फ्रिक्शन फोर्स इज टेंजेंशियल फोर्स which acts parallel to surface in contact. ठीक है, तो हमने देखा था कि the direction of normal force was perpendicular to the surface, okay, but friction force is parallel to the surface of contact. क्लियर बात सबको? ये डायरेक्शन इज पैरेलल, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो यहाँ सरफेस है एंड देयर इज दिस ब्लॉक, ठीक है, और इस ब्लॉक को मान लो इधर पुल किया जा रहा है, और ये सरफेस जो है वो फ्रिक्शनल सरफेस है या फिर रफ सरफेस है। ओके, तो मुझे बताइए कि फ्रिक्शन, नॉर्मल फोर्स तो पता है हमें ऊपर लगेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा इसमें बताइए? सर अपोजिट सरफेस फोर्स पहली बात तो पैरेलल लगेगा,
ठीक है ना, और पैरेलल किधर लगेगा, जिधर पुल हो रहा है उसके ऑपोजिट। हियर इट इज, दिस इज द जनरल नेचर ऑफ फ्रिक्शन। ओके, अब फ्रिक्शन फोर्स के बताइए कितने तरह के होते हैं फ्रिक्शन फोर्स? 2 तरह के होते हैं। कौन से होते हैं? एक तो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन और एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या होता है डिफरेंस बताइए मुझे काइनेटिक और स्टैटिक में? स्टैटिक मोशन है। काइनेटिक फ्रिक्शन कब होता है? जब देयर इज अ मोशन हो रहा है, there is a relative motion between surface and the block बॉडी। ठीक है, और स्टैटिक फ्रिक्शन कब होता है? जब the block is at rest with respect to the surface। क्लियर बात सबको? तो काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं, एक बार फॉर्मली से लिख लेते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं, तो फॉर्मली इसका लिख लीजिए आप। इट एक्ट्स when the object slides with respect to surface। with respect to surface, और इसका डायरेक्शन होगा, the direction is direction of kinetic friction। Direction of kinetic friction is opposite to motion of object with respect to surface। ओके, तो पहली बात तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट्स when the object slides with respect to the surface। So this is one thing। The second thing is that the direction of kinetic friction is opposite to motion of the object with respect to surface। ठीक है, तो मोशन जो है ऑब्जेक्ट का with respect to surface उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करेगा ना, मोशन को अपोज करना चाहेगा, रिलेटिव मोशन को। ठीक है, तो एक क्वेश्चन, एक इसके पहले एक और चीज लिख लीजिए, द वैल्यू ऑफ एफ के, है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन इज डिनोटेड बाय एफ के, और एफ के की वैल्यू क्या होती है बताइए? म्यू के इनटू एन। ओके, सो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू के इनटू एन, वेयर म्यू के इज व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक। म्यू के इज व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ kinetic friction। of kinetic friction। And what is N? Normal force। N is the normal force by the surface on object। ओके, लिख लीजिए इसे, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। इसके बाद में एक क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद में हम स्टैटिक फ्रिक्शन की फॉर्मल डेफिनेशन और फॉर्मल डायरेक्शन देखेंगे।
लिख लिया सबने? Yes, sir. ओके, Yes, sir. question. There is a block of 1 kg. ठीक है, ये जो सरफेस है, इस सरफेस का म्यू दिया हुआ है 0.2. Now it is pulled with force 10 newtons. So find the acceleration. Okay, what will be the acceleration? निकालिए आप. Sachin Shivam, 8 Newton. Okay. (8 meters per second square). Okay. Shashwat. Sujata, 8 Newton. Srijan. Okay. 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 Okay, guys. So now tell me. This is block of 1 kg. ठीक है. So सबसे पहली बात तो इस ब्लॉक के ऊपर हम फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं वो देख लेते हैं. ठीक है. तो 1 kg का ब्लॉक है. So in downward direction there will be mg. Okay. In upward direction there will be normal force by the surface. The 10 Newton is applied in this direction. Okay. And friction forces we know is parallel to surface. It is given by Fk. Okay. So पहले बताइए मुझे कि what will be the normal force? Normal force mg होगा? If normal force is mg, then what is Fk? Fk is mu into mg. Mu k into normal. So यहाँ पर mg क्या है? M is 1, so ng is 10, so normal force is 10 Newton. Okay. So mu k into n. So mu k is 0.2 into what is n? 10. So what is the frictional force? Frictional force is 2 Newton. Okay. Now consider in this direction. In this direction, F is equal to ma. Okay. The mass is 1 kg. Acceleration is a. What is the force? Force on the right is 10. Force on the left is Fk. So 10 minus Fk we have already calculated, which is 2 Newton is equal to A. So A is equal to 8 meters per second square. Clear सबको? Yes, sir. Okay. Okay. Now write down the next question. डाउट है. Just 1 minute. हाँ बोलिए. ओके सर. सर हमने अभी जो फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ी थी, सर वो नॉर्मल के साथ कैसे कोरिलेट हो गई? वो तो फ्रिक्शन सरफेस के लिए है ना? Friction surface के लिए है sir, but what happens is that the more is the normal force, the more is the object is in contact with the surface. समझ के बात? आप मान लो कि कोई ब्लॉक है आपने सरफेस पे रखा है, ठीक है? तो आप ब्लॉक को जितना पुश करेंगे उतना ब्लॉक जो है वो सरफेस के साथ कांटेक्ट में हो जाएगा, तो उतने ही ब्लॉक के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस के मॉलिक्यूल्स के साथ लॉक हो जाएंगे, तो उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन जो है एक्ट करेगा उस ब्लॉक के ऊपर. आपने नोटिस किया होगा
है ना, कि जो हैवी मान लो सूटकेस होता है, उसको ड्रैग करने में ज्यादा एनर्जी लगती है ना, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होता है, बिकॉज नॉर्मल फोर्स ज्यादा है। तो नॉर्मल फोर्स ज्यादा होगा तो देयर विल बी मोर इंटरेक्शन और मोर लॉकिंग और कॉन्टेक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द ब्लॉक एंड द सरफेस। तो जितनी ज्यादा लॉकिंग होगी उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है, सर फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा मतलब हम तो मतलब फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा, उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा उनके बीच में। ओके ओके, अब इस वाले क्वेश्चन को ट्राई कीजिए आप। There is an inclined plane. The angle is 60 degree. Okay. The mass is 1 kg. Okay. The mu is 0.2. Okay. So the block is here. So the block will slide down. So calculate A. Okay. आपको इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन निकालना है सरफेस की डायरेक्शन में जिधर स्लाइड कर रहा है। So what is the method? So first of all, the surface is rough. So there will be friction force. So first we need to find the friction force. For friction force, we need to find the normal force. Normal force, I told you how to find. Okay. Sachin बोल रहे हैं 5√3 - 1. Okay. So your method should be first find the normal force. After the normal force, find the friction force. After the friction force, apply the Newton's laws of motion and calculate the acceleration. (5√3 - 1). Okay. Shivam बोल रहा 7.66. So I think it is √3 is 1.732. Okay. Vinayak बोल रहे हैं 3.26. So if we calculate 5√3 - 1, so what will be that in decimal points? 7.66 ही आ रहा है। Yes, sir, 7.66. Okay, 7.66. Okay. Okay. So now guys tell me, इस ब्लॉक के ऊपर हमने नॉर्मल फोर्स देखा था? क्या लग रहा था नॉर्मल फोर्स? mg cos theta. Normal force is nothing but mg cos theta. So m is 1, g is 10, and cos theta is 60 degree. So cos 60 is 1/2. So n is 5 Newton. Okay. n is 5 Newton. अब इस ब्लॉक के ऊपर जो है ग्रेविटी के 2 कंपोनेंट्स होंगे, तो ग्रेविटी का इधर वाला कंपोनेंट क्या लगेगा बताइए? mg sin theta. Okay. Now if the motion is in downward direction, the friction force will be parallel to surface and opposing the motion. Opposite direction. Okay. If acceleration is in this direction, the friction is in opposite direction. So apply F is equal to ma. Mass is 1 kg into A. Force is mg sin theta is in this direction. Minus it is opposed by friction. What is friction? Friction is mu n. Okay. So m is 1 into g is 10 into sine 60 is √3/2 minus mu is 0.2 into
normal is 5. This is acceleration. So acceleration will be 5√3 minus 1. Okay, this is 7.66 meters per second square. Okay. सर एंगल 30 डिग्री नहीं लेंगे क्या? Excuse me, sir. No sound, No, sir. sir. No, sir, you're not audible. Hello. Yes, Sir. sir. Yes, sir. हाँ Yes. मैम पूछिए, क्या पूछ रहे थे आप? 30 डिग्री क्या एंगल? सर एंगल 30 डिग्री नहीं लेंगे क्या? नो बट एंगल इज गिवन है 60 डिग्री, राइट? लेकिन सर आपने ऐसा केस कराया था तो उसमें mg के कंपोनेंट्स लिए थे तो उसमें थीटा को 90 माइनस थीटा किया था ना? Sir, सर वॉइस फिर नहीं से आ रही। आवाज हेलो. Yes, यस सर. हाँ, क्या डाउट है आपका मैम, बताइए. सर mg के कंपोनेंट्स लेंगे तो उसमें थीटा 90 माइनस थीटा नहीं लेंगे क्या? देखिए इधर mg है, यस सर. ये थीटा है, जी सर. तो ये 90 माइनस थीटा है. तो mg का इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा? mg cos 90 माइनस थीटा विच इज mg sin थीटा. ओके सर. यस. 30 क्यों लेंगे? 60 दिया हुआ है ना थीटा. ओके, सो गाइस नाउ तो क्लास थी ना हमारी. Yes, sir. ओके, सो स्टैटिक फ्रिक्शन इसके बाद हम करेंगे, उसके बाद में प्रॉब्लम्स करेंगे. तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सर मेरा एक डाउट था. हाँ जस्ट 1 मिनट. स्टैटिक फ्रिक्शन जो है उसके बाद में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की प्रॉब्लम से हम देखेंगे.
ठीक है। ओके जी, तो गुड बाय। जिनके डाउट्स हैं वो रुकिए, बाकी आप जा सकते हैं। सर एक बार क्वेश्चन 31 शो कर दो। जस्ट 1 मिनट। सर इसमें हम F को कॉमन तो तभी ले सकते हैं जब फोर्स 20 न्यूटन ही हो। क्या हुआ? तो इसमें F कॉमन तो तभी आएगा ना सर जब फोर्स 20 न्यूटन ही हो, नहीं क्योंकि नहीं, टेंशन तो दिस प्रॉब्लम इज सेम एज द लास्ट प्रॉब्लम 20 न्यूटन वाला। तो वहां पर बस 20 आ रहा था और यहाँ पर F लगाया, बाकी तो सेम ही है पूरा प्रॉब्लम। तो सर टेंशन तो F माइनस 2gx/L आएगा। नहीं नहीं, टेंशन फोर्स का देखिए, ये प्रॉब्लम और जो पहले मैंने कराया था सेम टू सेम प्रॉब्लम है। जस्ट यहाँ पर F है और वहां पर तो था 20 न्यूटन था। F वहां पर, तो यहाँ पर 20 आ रहा था, तो 20 की जगह F आ जाएगा सिर्फ यहाँ पे। तो सर कॉमन तो तभी लेंगे ना क्योंकि x के साथ तो 2g मल्टीप्लाई था ना, तो वो तो 20 हो रहा था, तभी तो कॉमन लिया था। देखिए यहाँ पर 20 लग रहा था, ठीक है, तो 20 बस यहाँ पे आ रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर F लेंगे तो यहाँ पे F आ जाएगा। आप एक बार इसको एक बार होमवर्क में ट्राई करके देखिए, जिस तरह से मैंने 20 वाला लेकर किया था इस तरीके से इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखिए, और फिर आता है कि नहीं आंसर। ये होमवर्क पे करिए इसे आप, ठीक है। ओके सर। है ना, आप जो भी बोल रहे हैं, जो भी फोर्सेस लगा के जिस तरीके से हमने वाला प्रॉब्लम किया था, एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम है मैम, और कुछ है ही नहीं। तो उसको आप एक बार ट्राई कीजिए, यही आएगा आपका, ठीक है। ओके सर। ओके, हाँ जी, एक और बार बताइए आपने क्या जो डाउट है? और आपने जो बताइए क्या क्वेश्चन डाउट है? दिया था सर्कल, उसका आंसर बता दीजिए। क्या हुआ? सर आपने जो लास्ट में कल क्वेश्चन दिया था ना, उसका आंसर हाँ, बता वो हम देते। डिस्कस करेंगे। उसका आंसर क्या था कि पुल हो रहा था ए से और ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना था ना। हाँ सर, हाँ, ब्लॉक तो पे उसका आंसर बता देता हूँ मैं। उसका आंसर आएगा A/4। और टेंशन सर क्या था, MA/8 आ रहा था क्या? टेंशन जो था वो था, टेंशन आ रहा था कितना था, 2 पुलिस थी ना, तो 16 टेंशन सर, आएगा MA/16 आ रहा था सर। 16। जस्ट 1 मिनट। हाँ, यू राइट। ओके यस सर मेरा वो एक ड्रैग फोर्स का एक क्वेश्चन था सर, मतलब कॉन्सेप्ट से डाउट है। ड्रैग फोर्स का असाइनमेंट में डाउट है क्या आपको? नहीं सर, कॉन्सेप्ट का एक डाउट है। हाँ, पूछिए ड्रैग फोर्स का सर कॉन्सेप्चुअल डाउट। सर आपने जब वो टर्मिनल वेलोसिटी निकाला था जब एक हाँ सॉलिड जी, बॉडी का, हाँ तो बिल्कुल। आपने उसको mg = 6πr eta vt से इक्वेट कर दिया था ना। mg = 6πr eta v करके हाँ, इक्वेट कर जो दिया। टर्मिनल वेलोसिटी निकाला था, बिल्कुल सही बात है। हाँ सर, आपने वहां पे फ्लूइड एक बॉयंट फोर्स लगाएगा, आपने उसको नेग्लेक्ट कर दिया क्या? नहीं, फ्लूइड की बॉयंसी मैंने वहां पे बात नहीं की थी अभी सर लेकिन फ्लूइड की वो फोर्स तो वो भी रहेगा ना, तो नेट फोर्स में उसको भी काउंट करना पड़ेगा। हाँ, फोर्स वो भी रहेगा, बट क्या है कि बॉयंसी जो है वो, बॉयंसी फोर्स क्या होता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन डेंसिटी। हम Yes, बॉयंसी sir. फोर्स जब फ्लूट करेंगे तब आराम से बॉयंसी फोर्स करेंगे, तो इट इज डिफरेंस इन डेंसिटी, ठीक है। यस सर। है ना। तो जो है, मान लो कि सॉलिड बॉल है बहुत ज्यादा, और जो फ्लूइड है वो बहुत ही ज्यादा थिन फ्लूइड है, मतलब एयर टाइप का है, या फिर बहुत, मतलब समझो लिक्विड बहुत थिन फ्लूइड है, तो बहुत कम Okay. डेंसिटी होगी, तो उसकी बॉयंसी लगभग नेग्लिजिबल होगी। ओके ओके सर। सर अगर बॉयंसी को अगर काउंट में लेंगे तब भी वो जो रेडियस और मास का जो रिलेशन आया था वो सेम रहेगा क्या? हाँ हाँ, सेम रहेगा। ओके ओके सर। ओके, बॉयंसी वाले हम आगे करेंगे। ओके सर। ओके जी, एनी वंस डाउट? अजीत, आपका कुछ डाउट था पहले? सर यस सर। हाँ जी, क्या डाउट था आपका? बोल लीजिए भाई आप। सर जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो हमेशा मतलब इनर्शियल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा ना बॉडी के। अगर बॉडी इनर्शिया ही नहीं फॉर्म करेगी, बॉडी का अगर इनर्शिया कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन भी नहीं होगा ना उस बॉडी पे। नहीं, नॉर्मल जो है वो इनर्शिया की बात नहीं, नॉर्मल जो है वो सरफेस के ऊपर बॉडी जो है वो पुश कर रही है, तो सरफेस फिर बॉडी को पुश कर रहा है, तो इट इज अ फोर्स बाय सरफेस टू द बॉडी। तो सर अगर जितना हम ज्यादा, हाँ जी पुली बोलिए। लेते हैं सर, जो मासलेस हाँ पुली है,
तो हाँ उस हाँ केस में अगर हम उसको कहीं पे भी प्लेस करते हैं, किसी भी सरफेस के कांटेक्ट में रखते हैं, तो उस पे नॉर्मल नहीं लगेगा ना? पुली की बात कर रहे हैं, पुली पे नॉर्मल किसकी वजह से मतलब नहीं या फिर लगेगा? कोई भी सर, या फिर सर कोई भी मासलेस हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं सर, हाँ जो हाँ, मतलब एक मासलेस, नक्शा बिल्कुल फॉर्म। सही बात है, मासलेस ऑब्जेक्ट पे कोई नॉर्मल नहीं लगेगा, क्योंकि नॉर्मल फोर्स हमने देखा कि जस्ट ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो नॉर्मल इज इक्वल टू mg होता है। तो मतलब मास, नॉर्मल है जो सर मास पे डिपेंड करेगा ना, हाँ इवेंचुअली बिल्कुल बॉडी का बिल्कुल, मास होना मास पे चाहिए। डिपेंड करेगा ही, ओके बिल्कुल क्यों नहीं करेगा। ओके सर। तो जो नॉर्मल सर का वो मैं नेचर हो, ओके, हाँ जी, जो नॉर्मल का नेचर होगा वो कौन सा होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। नॉर्मल का नेचर देखिए, अल्टीमेटली तो जो भी फोर्स हम फिजिकल वर्ल्ड में देखेंगे ना, खींचेंगे, टेंशन, नॉर्मल, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही अल्टीमेटली, क्योंकि अल्टीमेटली तो मॉलिक्यूल्स ही कर रहे हैं ना इंटरेक्शन। ठीक है, अल्टीमेटली फिजिकल वर्ल्ड में हमारे जो नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में केवल दो फोर्स हम काम करते हैं, वन इज ग्रेविटी और दूसरा जितने भी टेंशन, फ्रिक्शन, नॉर्मल जितने भी हैं ग्रेविटी के अलावा सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आप देखेंगे कि मान लो आप टेंशन स्ट्रिंग को पुल कर रहे हैं, तो पुल कर रहे हैं तो आपके हैंड्स के मॉलिक्यूल्स और स्ट्रिंग के मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शन हो रहा है, तो अल्टीमेटली वो भी क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया। तो जो स्ट्रॉन्ग और वीक फोर्स है वो दे आर नॉट विजिबल इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, दे आर इन द इनसाइड द न्यूक्लियस। ओके सर जो सरफेस और हमने ब्लॉक लिया था सर, उसमें हाँ नॉर्मल था, वो सरफेस के कारण लग रहा था। हाँ, नॉर्मल जो है, अब सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्लॉक के मॉलिक्यूल्स को ऊपर पुश करेंगे। और सर उसका जो ब्लॉक लगाएगा सरफेस पे, वो दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे ना? हाँ देखिए, सरफेस ब्लॉक पे लगाएगा तो थर्ड लॉ क्या कहता है कि इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो ब्लॉक सरफेस पे लगाएगा। सर mg वाला नहीं होगा क्योंकि वो अर्थ लगा रही है। mg तो अर्थ लगा रहा है। ठीक है, ठीक है। ओके। और सर एक्सक्यूज काइनेटिक मी फ्रिक्शन सर। के लिए सर, या फिर किसी भी फ्रिक्शन के लिए हमें हाँ मतलब दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन को हमेशा देखना है ना? बिल्कुल, रिलेटिव मोशन को दो सरफेसेस के बीच में, ओके सर, थैंक यू। क्योंकि फ्रिक्शन का नेचर ये है, बेसिक सबसे फाउंडेशनल नेचर फ्रिक्शन का ये है कि सरफेस में वो कांटेक्ट में रहना चाहता है, वो स्लाइड नहीं करना चाहता, वो अपोज करता है स्लाइड को, मतलब रिलेटिव मोशन को अपोज करता है वो फ्रिक्शन। हाँ पूछिए आगे। सर हाँ सर असाइनमेंट 1.4 में आरएमएस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन निकालने का क्वेश्चन था। हाँ, तो मैंने अभी उसको कुछ क्वेश्चन से मैंने अभी छोड़ने के लिए बोला है, वो मिसलेनियस टाइप्स के हैं, उनको हम बाद में करेंगे। ओके ओके सर एक डाउट है ना कि टर्मिनल वेलोसिटी को जो हम लोग एक्सप्रेशन फाइंड आउट किए थे, हाँ तो उसमें है कि एक और मतलब कि हम लोग 11th क्लास में पढ़े हुए थे टर्मिनल वेलोसिटी का 2 रो r स्क्वायर g अपॉन 9 ईटा। सर ये एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन दोनों डिफरेंट है या फिर दोनों मतलब अल्टीमेटली सेम ही है, सिर्फ फॉर्मेट अलग है? कौन सा एक्सप्रेशन पढ़ा था आपने अजीत? यस सर, मैं बता रहा हूँ, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी हम लोग पढ़े थे, हाँ 2 ऑफ ब्रैकेट में है रो माइनस सिग्मा r स्क्वायर g और हाँ। उसके डिवाइडेड बाय 9 ईटा। तो सिग्मा क्या है और रो क्या है यहाँ पे? यस सर, और जो सिग्मा सर मतलब कि थोड़ा सा हो गया बहुत दिन, तो सर थोड़ा सा भूलता जा रहा हूँ। नहीं तो आप रो और बट सिग्मा जो है ना, सिग्मा वो आई सर थिंक कुछ इट इज द आई थिंक डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड ऑन ऑब्जेक्ट, राइट? यस सर, कुछ ऐसा ही था। हाँ, तो आप जो आपने मतलब जो ये एक्सप्रेशन दोनों निकाला, वो बॉयंसी फोर्स वाला एक्सप्रेशन बता रहे हैं आप, ओके है ना? क्योंकि मुझे जो डाउट था, हाँ समझ में हाँ आया था इसी। ठीक है, तो मैंने जो आपको बताया टर्मिनल वेलोसिटी, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट टर्मिनल वेलोसिटी, और आप जो बता रहे हो बॉयंसी के अगेंस्ट टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, ओके सर। और सर एक चीज और था ना हाँ कि जैसे कि हम लोग जो पिछले क्लास में लोग पढ़े थे, हाँ जो पुली वाला क्वेश्चन, ओके तो पुली वाला क्वेश्चन में सर हम लोग था कि पुली कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा था पुली में, और हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर रहे थे। हाँ पुली का, यस सर, तो उसमें सर ऐसा भी तो मतलब क्वेश्चन एक मुझे केस मतलब लगता है कि एक्सेलरेशन किया हुआ हो और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना हो, तो सर मतलब रिवर्स प्रॉब्लम उसकी। हाँ तो वो एक्सेलरेशन दिया और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो, तो आप एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म है तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दीजिए। यस सर, और सर इसमें अगर हम लोग एक बात और ऐसा कि अगर हम लोग उससे फाइंड आउट करते हैं तो सर उसका हम लोग एनर्जी
या मोमेंटम या जो भी और भी पैरामीटर हैं फिजिकल हाँ। पैरामीटर, उसको भी तो फाइंड आउट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप कर सकते हैं फाइंड आउट, बिल्कुल कर सकते हैं सिस्टम का। तो सर मैं यही कह रहा था कि मतलब हिंट के तौर पर सर क्लास में थोड़ा बहुत अगर डील हो जाता तो सर नहीं मतलब तो हर किसी एनर्जी को। मोमेंटम, जब हम एनर्जी मोमेंटम, अभी हमने चैप्टर किया ही नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन मोमेंटम करेंगे, अभी मैंने डिफाइन ही नहीं किया एनर्जी मोमेंटम, तो जब वो करेंगे तो सब ये सब प्रॉब्लम्स को उस तरीके से भी करेंगे फिर। यस सर। और सर एक चीज और है ना कि हमको मतलब हम टर्मिनल वेलोसिटी का हम मतलब निकाले हुए थे, फोर्स मोमेंटम एनर्जी, तो वो भी हमको एक्सप्रेशन थोड़ा सेटिस्फाइड होना था सर। एक्सप्रेशन क्या करना था? मतलब सेटिस्फाइड होना था कि मैं सही निकाला हूँ या गलत निकाला हूँ। हाँ तो आप क्या चाहते हैं फिर कि मैं चेक करूं एक बार, ऐसा? यस सर, मैं वही चाह रहा था। हाँ ठीक है, तो अभी भेज दो, मैं अभी टेलीग्राम पे मैं करता हूँ अभी। एक छोटा सा हाँ एक करके पूछिए। अभी कौन, दिग्विजय पूछ रहे हैं? कौन पूछ रहे हैं? दिग्विजय हाँ जी पूछिए दिग्विजय। अभी सारा पढ़ रहे हैं, जितना भी अभी तक मैंने पढ़ा है तो सारा ये मैकेनिक्स की तरफ है। क्या हुआ इसमें अभी तक? ये न्यूटनियन मैकेनिक्स है ना सर? हाँ बिल्कुल। अच्छा, आइंस्टाइन मैकेनिक्स तो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है इससे जब नहीं, आइंस्टाइन मैकेनिक्स सर, आइंस्टाइनियन मैकेनिक्स में पहले स्पेशल रिलेटिविटी आता है और उसके बाद में फिर वो जो जनरल रिलेटिविटी है ना, आइंस्टाइन ने जो है ग्रेविटी की थ्योरी दी थी, उसको बोलते हैं जनरल रिलेटिविटी। तो उसमें जो है क्या है, न्यूटनियन जो इसके कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो वर्क नहीं करते, तो उसको आइंस्टाइन ने मॉडिफाई किया था स्पेस टाइम। या थैंक यू सर। ओके सर असाइनमेंट 2.1 का 21st क्वेश्चन है ना? वो मैंने क्लास में कराया था क्या? नहीं सर, उसमें डाउट है कि सर हाँ। उसमें अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करे तो भी आंसर आ रहा है, पर कंसेप्ट का नहीं पता। तो मैम आप एक बार ट्राई कर लीजिए, जब हम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे तब आप स्पेसिफिक पूछिएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें, ठीक है? नहीं सर, वो क्वेश्चन आपने करा दिया, उसमें फोर्स की वैल्यू दी है, वेलोसिटी दिया और मास दिया हुआ है अच्छा और टाइम निकालना है। तो सर उसमें F इक्वल टू एम वी, फिर V F इक्वल टू एम ए, फिर A की जगह V/T लिख के आंसर नहीं निकाल सकते? जस्ट 1 मिनट। 21 की बात कर रहे हैं आप? यस सर। फोर्स ऑफ 6 न्यूटन वाला ना? यस सर। हाँ, तो इसने बोला है कि 6 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, मास 1 kg है, और न्यूटन का फोर्स लगाने के बाद में बॉडी अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर्स पर सेकेंड। हाँ तो देखिए, बॉडी जो है शुरू हो रहा है और फिर वेलोसिटी अचीव कर रहा है 30 मीटर्स पर सेकेंड, तो इनिशियल 0 है और बाद में 30 मीटर्स पर सेकेंड है। हाँ, तो आपका क्या क्वेश्चन है? तो सर सीधा वैल्यू पुट नहीं कर सकते? F इक्वल टू एम ए, फिर A इक्वल टू V/T। हाँ उससे भी तो आंसर आ रहा है ना? तो वही तो हमने किया था ना, V इज इक्वल टू यू प्लस AT। A इज इक्वल टू V/T कब रख सकते हैं? जब A इज इक्वल टू V/T, मतलब जनरल फॉर्मूला नहीं है ना। A इज इक्वल टू V/T एक स्पेशल केस है जिसमें U 0 है, समझ गए बात? तो V इज इक्वल टू यू प्लस AT में U 0 रखेंगे तो A इज इक्वल टू V/T आ जाएगा। ओके सर, मतलब अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 तभी रख सकते हैं। हाँ, जनरल फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, V इज इक्वल टू यू प्लस AT, ठीक है? अगर मान लो इनिशियल कुछ 10 मीटर्स पर सेकंड दिया हुआ है, तो V A इज इक्वल टू V/T गलत होगा ना, A क्या होगा? V माइनस U/T। हाँ सर, ओके सर। ओके थैंक यू। ओके वेलकम। ओके जी, सो अजीत आप जिसके डाउट्स हैं जो भेज दीजिए मुझे, मैं देख लूंगा टेलीग्राम पे। और सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। ओके सर आपको पर्सनल भेजे या ग्रुप पे? नहीं, ये मुझे जो आप जिसके ग्रुप में, एक बार जो ग्रुप वाला चैनल है ना उसमें लिख दीजिए। पुली वाला एक्सेलरेशन और टेंशन क्या हुआ? वाला क्वेश्चन दिए तो होमवर्क में उसका आंसर क्या था? पुली वाले का मैंने बताया कि एक्सेलरेशन जो है वो जब स्ट्रिंग के एंड का एक्सेलरेशन A दिया हुआ है ना, तो जो ब्लॉक बड़ा वाला है उसका एक्सेलरेशन A/4 होगा। और टेंशन सर? टेंशन बताइए क्या होगा आप? ma/16। टेंशन होगा ma/16। जस्ट 1 मिनट। 40 इज इक्वल टू, हाँ ma/16 है टेंशन, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ओके सर। ओके ओके जी, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके ओके सर। ओके, गुड बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय।
और असाइनमेंट सब करते रहिए साथ साथ में।